Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant back with a new lecture on the topic that is biomolecules. In the previous lectures, we have seen the concept of metabolism, the two steps, that is the anabolism and catabolism, which are actually parts of metabolism, which together forms the metabolism. In that we also saw the concept of primary metabolites, secondary metabolites. So today we are starting with a new topic in this same lesson, that is the concept of enzymes. Now as you know, basically first of all we'll see this. So first of all, this name enzyme, it is N and zyme, that is in yeast, that means in yeast. So first enzyme that was discovered, that was the zymase, and in yeast, that is a unicellular fungus which we generally use for baking process and all. So from that this word is been derived, that is enzyme. And enzymes, you can say these are all like a biocatalysts, means all the chemical reactions that takes place, in a cell are controlled by some of the other enzymes. So enzymes play a very crucial role in controlling all the metabolisms in the cell. So basically when we say enzymes, so first thing which comes in mind is they are all made up of proteins. In the video where we studied about the proteins, in that I have already told you proteins, it is derived from the word proteos, that stands for first, or coming first of pioneers, and that is obvious because that first protein which was formed in the nature during the course of evolution, it was eventually an enzyme, because that enzyme led to various chemical reactions within that initial a group of compounds, that were organic compounds that were formed in the oceans, and that led to formation of cell. So basically one important aspect of enzymes, कि all enzymes are proteins, exclusively proteins, ठीक है. So speaking of this, तो इससे क्या होता है, तो देखो एक नॉर्मल एग्जांपल है, मैं दो एनर्जी एमिटिंग प्रोसेसेस की बात कर रहा हूं, एक जो कि है कंबशन एंड दूसरा है एक्चुअली रेस्पिरेशन. कंबशन मतलब सिंपल, अगर कोई लकड़ी है, अगर मैंने उसको जला दिया, लकड़ी है उसको मैंने जला दिया, तो ऑब्वियसली इट बर्न्स इन एयर, बट इफ यू सी दैट इट इज इन एन अनकंट्रोल्ड वे इट बर्न्स, ठीक है. मतलब एक बार आग लग गई लकड़ी को या पेट्रोल को ले लो, तो इट जस्ट गोज ऑन, ठीक है. सो मतलब देयर इज नो स्टेप वाइज. बट in respiration also, what we do is our cells break down glucose into its constituent parts, that is CO2 water, with liberation of energy which is in a stepwise manner, and each and every step of that respiration process is controlled by the enzymes, and hence there is what you can say coordination, or you can say there is a uniformity in every process in our body. There is no jumbling up, there is no mixing up of the reactions. So every reaction, once first reaction takes place, then only the second reaction will occur, and that is controlled by enzymes, and all the set of enzymes is controlled by one hormone, ठीक है. जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर समझाना है, से अगर रोड कंस्ट्रक्ट करना है, सो रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले ऑब्वियसली रास्ता साफ करना पड़ेगा. रास्ता साफ करने के बाद डांबर बिछाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर पत्थर डालने पड़ेंगे. सो देखो, पहले झाड़ू मारने वाले रहेंगे, वो वर्कर्स का फर्स्ट काम है, ठीक है. उसके बाद डांबर डालने वाले वर्कर्स का सेकंड काम है. तीसरा जो उसके ऊपर पत्थर जो डालेगा वो मशीन का काम है. फिर उसके बाद रोड रोलर का काम है. फिर उसके बाद मार्किंग. सो टेक्निकली इफ वी सी, there is one action that we have to perform is to construct a road, and to construct a road there are these steps. Obviously I can't just what you can say run the roller directly at the first step, ठीक है. So it will not make any sense to that,
ठीक है। सो सिंपल सी बात है, हर एक प्रोसीजर के स्टेप्स होते हैं, वो उन्हीं स्टेप्स में परफॉर्म किए तो वर्क कंप्लीट होता है। एंड इसीलिए तो यहाँ पे भी जैसे ये मैंने बताया कि पहले साफ सफाई करने वाले, फिर डामर डालने वाले, फिर उसके ऊपर पत्थर डालने वाले, फिर उसके ऊपर रोड रोलर वाले, फिर उसके ऊपर मार्किंग करने वाले अपना काम करेंगे, ये स्टेप्स है। तो वो एक सेपरेट वर्कर, इफ आई अज्यूम दैट इन सब के लिए सेपरेट वर्कर्स है, सो दे आर डूइंग दैट। पर इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? द कॉन्ट्रैक्टर हु इज बिल्डिंग द रोड। सो कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी ना फावड़ा और ये लेकर काम शुरू करता है, ऑब्वियसली उसने वर्कर्स रखे। सिमिलरली इन अ बॉडी सेम वर्क इज डन बाय द हार्मोन्स, एंड हार्मोन कंट्रोल्स अ सेट ऑफ एंजाइम्स, एंड ये सेट ऑफ एंजाइम्स मिलकर एक प्रोसेस कंट्रोल कर। इसलिए व्हेन वी से हार्मोन क्या करता है, तो हार्मोन इट कंट्रोल्स अ सर्टेन फंक्शन ऑफ द बॉडी, एंड दैट फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ एंजाइम्स, एंड दोस एंजाइम्स को कंट्रोल करने का काम उस हार्मोन का। इनडायरेक्टली वी से दैट हार्मोन इज कंट्रोलिंग दैट प्रोसेस। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालते हैं। सो ऑब्वियसली ये मेटाबॉलिज्म हो गया, शरीर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। सो थायरॉक्सिन कंट्रोल्स दिस, इफ आई से सो इज कंट्रोलिंग द एंटायर रेस्पिरेशन प्रोसेस, एंड द ईच स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस विल बी कंट्रोल्ड बाय अ प्रोटीन। ठीक है, सो दिस इज हाउ एंजाइम्स रिएक्ट और बिहेव। नाउ स्पीकिंग ऑफ एज दे आर प्रोटीन्स, सो एक है दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने प्रोटीन्स, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ऑब्वियसली प्रोटीन जनरली टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फेज में एक्टिव होता है। ठीक है, मेजॉरिटी तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक्टिव होते हैं। मैं एक शॉर्ट में वापस बता देता हूं। तो सिंपल सी बात है कि प्राइमरी प्रोटीन मतलब क्या होता है? इट्स अ स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है जो यहाँ पे बनी हुई है, तो ये उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने समझाया था कि यही इट विल बी फोल्डेड लाइक दिस, आइदर इन अ कॉइल्ड मैनर मतलब ऐसा होता है, एंड एक बीटा पेलेट, दिस इज अल्फा हेलिक्स, एंड बीटा पेलेटेड मतलब लाइक इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। तो मैंने सपोज ये कॉइल वर्जन यहाँ पे ड्रॉ किया है उसका, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग्स होंगे एंड इट विल फॉर्म अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ऐसे अगर सपोज अभी मैं दो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ले रहा हूं, या मतलब चार ले लेता हूं फॉर आवर कन्वीनियंस, तो सिंपल है, चार मुझे सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर रादर ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे which look somewhat say like this. So every of this single straight chain primary structure is converted into secondary. Then these secondary structures आपस में mix होंगे, जैसे suppose ये है and it is going to mix with this, so they will interact with each other to form this tertiary structure. वैसे ये दो भी होंगे, तो similarly अगर मैं थोड़ा इधर ही दिखा देता हूँ, so if it is like this और ये इसके साथ इंटरैक्टेड है, ठीक है, और फिर क्वार्टरनरी होने के लिए ये टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। सो ये जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है वो एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है which is actually the functional protein, which is actually the functional protein जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। सो एंजाइम्स भी ऐसे, तो सिंपल सी बात है, अगर यही कहीं डिफेक्ट है, सपोज ये चेन बनने में ही डिफेक्ट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिफेक्टिव है, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये स्ट्रक्चर भी डिफेक्टिव होगा, ये स्ट्रक्चर डिफेक्टिव मतलब टर्शियरी भी डिफेक्टिव होगा। ओवरऑल ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, सो इसमें ये पूरे इसमें एक वीक लिंक होता है। सो ऐसे ही चीजें होती है कुछ बीमारियों में, जैसे थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया मेजर माइनर जब हम बोलते हैं, थैलेसीमिया मेजर मतलब अगेन हीमोग्लोबिन के ऊपर होता है। हीमोग्लोबिन अपने 4 रिंग से बना रहता है, पायरोल रिंग्स जिसको आयरन पकड़े हुए है, एंड अगर इनमें से एक भी रिंग खराब होती है, नॉर्मली एवरी रिंग विल अटैच टू वन
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब टेक्निकली एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट एट अ टाइम करता है, या 8 एटम से इंटरैक्ट करता है एक मॉलिक्यूल। पर अगर ये चेन डिफेक्टिव निकली, मतलब इफ इट इज नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली, इट इज नॉट फोल्डेड प्रॉपर्ली, देन इट विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। सो इसमें होता क्या है, सपोज ये हीमोग्लोबिन में 2 चेन्स होती है, अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स। अगर अल्फा चेन्स दोनों खराब हो गई है तो ये दोनों चेन्स काम नहीं करेगी, बट बीटा कर रही है, इसलिए ये थैलेसीमिया माइनर। या उल्टा भी हो सकता है, बीटा खराब हो, अल्फा सही हो, तो भी द हीमोग्लोबिन इज वर्किंग टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। सो एंड अगर चारों खराब हो गए, मतलब सपोज प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने में ही दिक्कत है, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी खराब बनेगा, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी भी खराब बनेगा। सो सिंपल है कि अगर ओरिजिनल बनावट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ही इंटैक्ट है तो फिर ये फंक्शनल प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर इनका ये स्ट्रक्चर किन्हीं कारणों से डीनेचर हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो ये प्रोटीन काम के नहीं होते। एंड इसीलिए जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये काफी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ये काफी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर मैं लेके जाऊं, ये हम लोग फैक्टर्स में पढ़ेंगे जो अपन एक देखने वाले, फटाफट एक शॉर्ट में बता रहा हूं। सपोज है कि ये एंजाइम का टेम्परेचर का ये ग्राफ अगर है, तो जनरली देखने को आता है लगभग 45-50 तक उसकी मैक्स लिमिट होती है। हर एंजाइम की अगर मेजॉरिटी की बात करता हूं मैं, तो 45-50 डिग्री सेल्सियस तक उसकी मैक्स लिमिट आ जाती है। एंड देन वहां से टेम्परेचर अगर और बढ़ता है तो एंजाइमेटिकल एक्शन घट जाता है, एंड एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके वो जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, एंड उसके बाद वो एंजाइम काम करने लायक बचता नहीं है। वैसे नेचर में कुछ प्रोटीन्स है, जैसे एग्जांपल सबने देखा होगा, हम जब अंडा उबालते हैं तो ऑब्वियसली इट कोएगुलेट्स, ठीक है, इट कोएगुलेट्स, ओरिजिनल प्रोटीन जैसा नहीं रहता, बिकॉज हीट से प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। सो वो एक है टेम्परेचर उसमें की रोल प्ले करता है कुछ के केस में। जैसे एक है थर्मस एक्वाटिकस, ये जो बैक्टीरिया है ये हमें वॉल्केनिक एरियाज में जो हॉट वाटर गाइजर्स होते हैं वहां पे बैक्टीरिया मिलता है, तो उसमें के एंजाइम्स भी हम लोग, मतलब वो ऑलमोस्ट 90 to 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर जोन में रहता है, तो ऑब्वियसली समझ सकते हो उसमें जो प्रोटीन है कम से कम उतना टेम्परेचर तो बर्दाश्त करते ही होंगे। सो कुछ एक्सेप्शंस है कि सम प्रोटीन्स कैन व्हाट यू कैन से कैन विथहोल्ड हाई टेम्परेचर्स, बट सब मेजॉरिटी जो है वो इतने हाई टेम्परेचर्स बर्दाश्त नहीं करते। सिमिलरली लो टेम्परेचर से भी रिलेटेड, तो हम वो फैक्टर्स में देखेंगे। सो इस तरीके से एंजाइम के ऊपर, वर्किंग के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। नाउ एक और चीज है, एंजाइम्स की अगर हम बात करें, एंजाइम्स बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में सिक्रीट होते हैं, बिकॉज ये कैटलिस्ट जैसा काम कर रहे हैं, दे आर नॉट यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन, ये सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं, इसलिए दे आर रिलीज्ड एक्चुअली इन वेरी स्मॉल proportion, that is enough, ठीक है। मतलब ये यूज अप नहीं होते, they are just what you can say mediating that reaction, so hence ये स्मॉल अमाउंट में भी अपना काम कर जाते हैं। एक एग्जांपल जैसे उन्होंने दिया है, एंड एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन काफी फास्ट भी होती है, ये सबसे मेन है। जैसे एग्जांपल उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है कि अगर H2O और CO2 ये कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड देते हैं, अगर विदाउट एंजाइम अगर मैंने छोड़ दिया तो ये 1 आवर में कुछ 200 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, 1 घंटे में की बात कर रहा हूं। पर यही अपने ब्लड में, जो जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर देखेंगे, ब्रीदिंग चैप्टर देखेंगे एक्चुअली, तो वहां पे हम पढ़ते कि आरबीसीज एक कार्बोनिक अनहाइड्रेज नामक एंजाइम रिलीज करता है, जिससे यही मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, एंड ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स बना लेता है पर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, पर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। सो तुम समझ सकते हो 1 घंटे में 200 बने नॉर्मली, बट तुम समझ सकते हो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है जो कमाल की इन रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकता है। एंड इसलिए सेल्स इतने एफिशिएंटली भी काम कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑल रिएक्शंस आर डन इन अ वेरी क्वाइट व्हाट यू कैन से फास्टर वे। सो दैट्स द इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स। इसलिए सेल्स में
enzymes play a very crucial role. सबको समझा? That's why we are studying this. So इसलिए सेल के सभी एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स प्ले वेरी क्रूशियल रोल एंड इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा वेवर टॉपिक है बट रिलेटेड है, क्योंकि सिंस एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं, एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं, तो बेसिकली दो टाइप के रिएक्शंस हम फटाक से देख लेते हैं क्या है. तो ये दोनों टाइप के रिएक्शंस हमें देखने को मिलता है, फिजिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, फिजिकल रिएक्शन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, यहाँ पे जो जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं तो से आइस कन्वर्टेड टू वाटर, तो इसमें तुम देख रहे हो इस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हो क्या रहा है कि जो सॉलिड है, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड और द कंपाउंड इज चेंजिंग इनटू सॉलिड टू लिक्विड, पर there is no chemical difference क्योंकि ice is also written H2O, water is also written H2O. So chemically उसमें कोई change नहीं हुआ है, but just the physical state has changed. Such chemical reactions or such change are known as physical change or physical chemical reactions. होप सो सबको समझा है what are physical chemical reactions? Reaction वो reactions जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड बदला है. फिर वो ऐसा भी हो सकता है पानी से वेपर, वाटर से वेपर, तो लिक्विड से गैस हुआ है, सो या गैस कंडेंस होके पानी बना है. सो इसमें देख सकते हो ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे है जहां पे मोस्टली हो क्या रहा है कि फिजिकल स्टेट, अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है, बट केमिकली वो वैसा ही है. सो इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज. तो ऑब्वियसली इसे समझ चुके रहेंगे केमिकल चेंज क्या होगी. ऑब्वियसली द केमिकल विल वेरी, से कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों अलग कंपाउंड्स है, पर जब रिएक्ट होगा तो कुछ तो भी दूसरा ही देगा, which is a compound. So these are elements and these are going to give you combine to form a compound. And obviously यहाँ पे अब इसमें ऐसा है कि केमिकली तो देख रहे हो ओरिजिनल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फॉर्मूलास में फर्क, so there is surely a change in the chemical formula and even there can be a change in physical forms also. It may or may not be. जैसे अभी ये तो सॉलिड है, ये तो गैस है, बट योर फाइनल प्रोडक्ट इज आल्सो गैस. सो होता क्या है, इट माइट चेंज और नॉट. जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया. नाउ यहाँ पे सारे गैसेस है, यहाँ पे सारे गैसेस, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है. सो इसमें तुम देख सकते हो there can be a physical change or there cannot be also. So simple है, but chemically surely होगा. So that's the basic difference between the chemical reaction and physical reactions. Obviously जो enzymes की बात कर रहे हैं they mostly control the chemical reactions in the body. तो इसलिए ये एक छोटा सा टॉपिक उसमें आया था, so वो मैंने कवर किया है. Hope so सबको ये समझा है. मैकेनिज्म पे आते हैं अभी. Now मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म एंजाइम्स काम कैसे करते हैं फटाक से एक बार देख लेते हैं, फिर वो मैकेनिज्म्स के ऊपर कुछ थ्योरी है कि हाउ दे रिएक्ट, तो वो दो थ्योरीज हम लोग देखेंगे. नाउ बेसिक फंडा ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है. एक सिंपल रिएक्शन एक मैं अगर लेता हूं, एक रिएक्शन है सपोज कन्वर्टिंग A to B, reactants is A and I am converting it into B, and this I am doing it without any catalyst. Same reaction अगर मैं लेता हूं by doing some catalyst, by using rather some catalyst, तो क्या फर्क आता है. सो देख सकते हो, उसको ग्राफिकली मैं बताने की कोशिश करता हूं. सो पहला वाला जो बता रहा हूं दैट इज विदाउट, जो व्हाइट से है. सो ये वाला जो है वो मैं व्हाइट से बता रहा हूं, एंड विद कैटलिस्ट वाली है वो मैं येलो से बता रहा हूं. ठीक है. सो नॉर्मली से ए का एनर्जी लेवल, रिएक्टेंट से उसमें सर्टेन एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. सो ये है क्या, एक साइड है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे है रिएक्शंस कोऑर्डिनेट. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो होता क्या है, एक रिएक्टेंट्स की एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी है. सो अगर विदाउट कैटलिस्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन हो सकता है बहुत गर्म करना पड़ेगा, तब जाके एक पॉइंट के बाद वो कन्वर्ट होके सी बने. ठीक है, मतलब वो मुझे प्रोडक्ट दे रहा है स्पीच, सॉरी. सो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो तुम एनर्जी देख रहे हो राइज, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने के लिए, मतलब ये जो एक हाईएस्ट पीक पॉइंट आएगा,
सो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे हैं ताकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर जाए, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब हो सकता है कि रिएक्टेंट्स में शायद उतनी एनर्जी ना हो टू रिएक्ट बिटवीन देम, एंड इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग दैट एक्सटर्नल हीट वी आर इंक्रीजिंग द एनर्जी। ठीक है, हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, वी आर इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ इट, एंड इसलिए होगा क्या, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, एंड जैसे बॉन्ड्स वीक हो गए दे विल गेट कन्वर्टेड, दे विल रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट्स। अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन ए एंड बी, इसे हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ये फिक्स होती है, ये कभी बदलेगी नहीं। ना ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हम चेंज करा सकते हैं। तो एंजाइम्स यही कर रहे हैं। एंजाइम्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एंजाइम्स क्या करेंगे, अगर एंजाइम डाला है तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड है ये उसको काफी हद तक कम कर सकता है। मतलब तुम देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम लगती है, एंड जबकि ओरिजिनल हीट ऑफ रिएक्शन तो उतना ही है। सो ये इसको टोटल हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ठीक है, इस टोटल यूनिट को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी प्लस हीट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी प्लस हीट ऑफ रिएक्शन हम इसे कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो फिक्स होती है, तो तुम देख सकते हो जो एनर्जी डिमांड है टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, ये हमने कम कर दी है विद द यूज ऑफ कैटलिस्ट। समझ में? सो ये टेक्निकल भाषा में, ये हम लोग केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में इसको डिटेल में देखेंगे, बट होप सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जीज यू कैन अंडरस्टैंड कि कैटलिस्ट कर क्या रहा है। अब वो कैसे करता है, ठीक से देखो। सो द रिएक्शन मैकेनिज्म इज क्वाइट सिंपल। क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, जो रिएक्टेंट होता है जिसे हम ये इस भाषा में क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, और ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है। मतलब ठीक से देखो, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो खुद कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। मतलब खुद कैटलिस्ट पर्सनली इंटरेस्ट लेके उन रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करता है यानी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर ये जैसे हम हीट कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, सो इट ब्रेक्स डाउन टू गिव यू प्रोडक्ट्स, प्लस यू गेट दैट एंजाइम अनअल्टर्ड। ठीक है, एंजाइम में कोई बदलाव नहीं होता, बट जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो इन दिस वे कैटलिस्ट जो डिमांड है ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको कम कर रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स बनाता है जो अनस्टेबल होता है, जो टूटकर तुरंत तुम्हें प्रोडक्ट्स एंड सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स एंड रादर एंजाइम्स तुम्हें वापस फ्री एंड में मिलता है, और ये एंजाइम वापस नए रिएक्टेंट के ऊपर काम करने के लिए रेडी है। सो दीज आर लाइक दिस। तो एक एंजाइम ही काफी काम कर सकता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। एक एग्जांपल है जैसे कि ऑलमोस्ट एक मॉलिक्यूल ऑफ कैटलिस्ट कैन ब्रेक डाउन पेरोक्साइड, ऑलमोस्ट 1 मिलियन पेरोक्साइड्स इन 1 मिनट। ठीक है, सो इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। एक मॉलिक्यूल की ये बात है, तो समझ सकते हो अगर कुछ मिलीग्राम्स भी अगर सिक्रीट हुआ है तो उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन एक्ट सो फास्ट इन दिस। तो होप सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन सबको समझा है। अब यही मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन समझाने के लिए हमें 2 थ्योरीज दी गई है। ठीक है, एनसीईआरटीज में एक ही दिया है, जो एक्चुअली आज के डेट में ज्यादा यूज होती है वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, बट एक पुरानी थ्योरी भी थी जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की। दोनों में सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा एक फर्क है इसमें। नाउ लॉक एंड की जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था बाय एमिल फिशर। ठीक है, एंड दिस वाज गिवन बाय कॉशलैंड। सो डैनियल कॉशलैंड इज द नेम। सो इन दोनों ने ये 2 थ्योरी दी थी। फटाफट देखते हैं ये है क्या। नाम इटसेल्फ बता रहा है लॉक एंड की, मतलब एक ताला है तो उसकी एक ही चाबी होगी ऑब्वियसली। मतलब उसमें कैसा होता है, जो ताले के अंदर के सॉकेट है उसी में फिट होती है वो की। तो सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ये एंजाइम है, सपोज ये उस एंजाइम का स्ट्रक्चर है,
जो भी फोल्ड्स होके तो ये उसके अंदर कुछ पॉकेट्स बनते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉकेट्स, एंड दीज आर नोन एज द एक्टिव साइट्स, दीज आर नोन एज द एक्टिव साइट। और सपोज मेरे पास एक सबस्ट्रेट है जो मैं येलो से दिखाता हूं, सो मेरे पास एक सबस्ट्रेट है जिसका शेप बराबर उसके काउंटर शेप जैसा होता है, तो उसको ये लगा है सपोज, सो ये एक सबस्ट्रेट है, तो ये जो सरफेस है ये वाला जो एंजाइम के साथ बाइंड होगा तो हम इसे कहते हैं बाइंडिंग साइट। तो जैसे देख सकते हो बाइंडिंग साइट का शेप और एंजाइम का, तो ये बराबर इंटरलॉकिंग है जैसे नॉर्मली ताले और चाबी में होता है। इसलिए होता क्या है, जब ये दोनों एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आते हैं तो स्टेप 1 दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इसमें होगा क्या, तो ये वाला जो है ये इसके साथ बाइंड होगा क्योंकि शेप बराबर मैच करता है, सो दिस इज नोन एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड फाइनली रिएक्शन के एंड में एंजाइम देखो वैसे का वैसा रह जाएगा, एंजाइम वैसे का वैसा रह जाएगा, एंड मुझे सबस्ट्रेट्स अलग अलग मिल जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट हो गए सबस्ट्रेट टूट कर प्रोडक्ट्स में बन जाएगा, सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स एंड दिस इज द एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज अगेन रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से, तो इसमें एक्चुअली ये उन्होंने कहा है, एमिल फिशर ने कहा है कि ये जो एक्टिव साइट है वो कभी चेंज नहीं होता, सबस्ट्रेट से बराबर मैच करता है। ऑब्वियसली अगर सबस्ट्रेट में कोई खराबी होगी तो फिर ये एंजाइम उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है। अब तक ये था व्हिच वाज गिवन बाय एमिल फिशर। इंड्यूस्ड फिट थोड़ा सा अलग है, इंड्यूस्ड फिट थोड़ा सा अलग है, इस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट उनका कहना ऐसा है कि सपोज एंजाइम अपना शेप थोड़ा बहुत बदल सकता है, ठीक है, एंजाइम अपना शेप थोड़ा बहुत बदल सकता है। सो अगर देखो ये वाला एक जस्ट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ स्क्वेरिश है, ये थोड़ा सा वी शेप है, ठीक है, सर्कल परफेक्ट सर्कल नहीं है, बट क्या होता है जब सबस्ट्रेट आता है एंजाइम है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उस एक्टिव साइट क्या करता है, बाइंडिंग साइट के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट। मतलब फिट एक्चुअली मैचिंग नहीं होते, कुछ कुछ अगर मैच हो भी रहे तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है थोड़ा बहुत डिफरेंस इधर उधर है, सो एंजाइम उसे एडजस्ट कर लेता है एंड फाइनली इट breaks down into the products. Once it is done, it will be back with its normal shape ताकि वो वापस काम करे। That's the basic difference, एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, तो इसलिए ये ज्यादा हमें सूट करता है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स में इंड्यूस्ड फिट को ही ज्यादातर सही माना है। मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं कि एकदम मैच ही करे, थोड़ा भी मैच नहीं हो तो मतलब ये इसका कहना है कि वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, बट ऐसा नहीं है इंड्यूस्ड फिट। इसलिए पर ये भी एक है, एंजाइम्स की एक और खूबी है कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर सेल्यूलोज है, एक शुगर है, उसको तोड़ने के लिए सेल्यूलेज ही होता है। अब मानते हैं कि अमाइलेज ये स्टार्च को तोड़ सकता है, और स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, बट स्टिल अमाइलेज कैन नॉट वर्क ऑन व्हाट यू कैन से सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज तोड़ने के लिए सेल्यूलेज ही चाहिए, यही अपने में है, अपने में अपेंडिक्स काम नहीं करता है, क्योंकि रीजन है अपेंडिक्स बनाता है द एंजाइम सेल्यूलेज, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट प्लांट शुगर, दैट इज द सेल्यूलोज इन दैट केस। सो वैसा ही है, सो नेचर का ये रूल है कि हर सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम हमेशा डिजाइन होता है, एंड नेचुरल हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमें देखने को मिलता है। होप सो आज का ये टॉपिक सबको समझा है। सो नेक्स्ट टॉपिक में जो कि इसका लास्ट सेक्शन होगा बेसिकली दैट, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम्स और कैसे एंजाइम एक्शंस अल्टर होते हैं, फिर उसका आईयूपीएसी नेमिंग प्लस उसके कुछ टाइप्स, and we'll wind up with this lesson. So hope so you like this lecture, so please like, subscribe and hit the bell icon for the notification. Bye bye.